Assalamu alaikum. Dear students, I hope that you will be fine. Today, we will be having a class of the introduction to psychology. As you know, that in this semester, we will be studying psychology as an introductory subject. We will be discussing about the scope, about the subject matter of the psychology in this very semester, in this very subject, inshallah. So this is our first lecture, and that lecture is wholly and solely focused on the psychology introduction. That what does mean of psychology इसके ऊपर है. So you can see here that what will be the focus on today's lecture वो ये है. ये देखें प्लीज आप लोग. Understanding the human thoughts, feelings and actions. Psychology helps explain everyday behavior. ओवरऑल हम जो साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, हमारी जो फोकस होगी इस पूरे सब्जेक्ट में, जब इसको हम टेकअप करेंगे, तो इसमें हमारा जो है फोकस वो किस चीज़ के ऊपर है? वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन थॉट्स के ऊपर है, फीलिंग्स के ऊपर है और एक्शंस. और ये साइकोलॉजी ही है जो कि हमें हेल्प आउट करती है, हमारी जो एवरीडे जो बिहेवियर है उस को फाइंड आउट करती है, उसको हेल्प आउट करती है. आगे क्या है जी, प्लीज. What is basically a psychology? This is a new subject for you guys, being the students of BBA. So it is very important for you guys as well, because by tomorrow you will be a business person. You will be having your own businesses. You will be working in multinational companies, different corporates. So to understand of this very subject, that is the psychology, is also one of the most important part of your professional degree. So what is basically a psychology? Please look at here. It is the scientific study of behavior and mental processes. This is called psychology. This is a very brief, to the point, and a very clear definition. One can explain in a simple words that the psychology is the scientific study of behavior and mental processes. So, what does mean of the behavior? This is very important. Again, what does it mean? It means the observable actions, walking, speaking, आप जो बात करते हो, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं बिहेवियर में. जिस तरह आप किसी के साथ इंटरेक्शन करते हो, आप जब किसी के को मुखातिब करते हो तो आप किस तरह बोलते हो, ये बिहेवियर में आता है. फिर मेंटल प्रोसेसेस क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बिकॉज द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर and the mental processes. So you know about what is behavior and what is mental processes. The mental processes are the thoughts, emotions, and the memory. So overall, it is the scientific study of behavior. In behavior, one is observing the walking, the speaking, the interactions of a person with others, and a mental processes. And in the mental processes, one can see या studies the thoughts, emotions, and the memory. So this is called psychology. आगे क्या है? It uses the scientific method to ensure the accuracy, and this is very important. Because of the scientific methodology of this very subject matter of the psychology, it becomes a different, a separate discipline in the sciences, in the academic studies. आगे देखें प्लीज. What are the goals of psychology? Again, हमने क्या
गोल्स अचीव करने हैं टू स्टडी दिस वेरी सब्जेक्ट, वो कौन से हैं? नंबर वन क्या है? टू डिस्क्राइब। टू डिस्क्राइब व्हाट डज इट मीन? टू ऑब्जर्व द बिहेवियर सिस्टमेटिकली, to explain, identify the causes behind the behavior, and to predict the forecast future behavior, and to control, modify behavior for improvement. So overall, हमारी जो बिहेवियर है, जो मेंटल प्रोसेसेस है, उसको हम स्टडी करेंगे, उसको हम समझेंगे, और यही इसी सब्जेक्ट के क्या है? गोल्स है, जो कि हमने जाके पढ़ने हैं इन द साइकोलॉजी। आगे क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट इज, these are some of the theoretical frameworks, these are some of the theories through which different psychologists explain and define the psychology in their own words in a different theoretical or different frameworks. तो सबसे पहला जो theoretical framework आता है या theory आती है, वो कौन सी है? वो structuralism है। स्ट्रक्चरलिज्म, इसका जो बानी है स्ट्रक्चरलिज्म का, वो कौन है? विलियम वंट है, और डेवलप्ड बाय दी एडवर्ड टेटनर। अब ये दोनों साहिबान ऐसी पर्टिकुलर फिलोसफी के क्या है, ये बानी है, और डेवलप किसने किया है? एडवर्ड साहब ने किया। अब ये दोनों ने फिलोसफी को किस प्रिज्म से देखते हैं, किस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से देखते हैं? इन लोगों का फोकस किस चीज के ऊपर है साइकोलॉजी में? सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी, मैंने फिलोसफी कहा है। अच्छा, फोकस क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड मतलब, सो इन स्ट्रक्चरलिज्म, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिस्ट theoretical framework, the Willem and the Edward, they are focusing on the structure of the mind to define the psychology, and what are the methodology that they are using to define or to identify that how the structure of the mind is working, and that is introspection. And what does it mean? Self observation of thoughts। खुद ही आप थॉट्स की जो ऑब्जर्वेशन करते हो कि क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके वो मेथोडोलॉजी है। ये इंट्रोस्पेक्शन, आप खुद से उसको एज्यूम करते हो। आगे है, इट ब्रेक एक्सपीरियंसेस इनटू बेसिक एलिमेंट्स लाइक सेंसेशंस एंड फीलिंग्स, एंड द लिमिटेशंस आर ऑलवेज सब्जेक्टिव, नॉट ऑलवेज रिलायबल। क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में क्या चीज़ है, आप लोग देखें, इसमें जो मेथोडोलॉजी यूज होती है ये इंट्रोस्पेक्शन है। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इफ यू आर ऑब्जर्विंग एंड इफ यू आर असेसिंग समवन्स माइंड थ्रू योर इंट्रोस्पेक्शन, किस तरह आप उसको देखते हो? उसके हरकतों को, उसके एक्शंस को, उसी एक्शंस और हरकतों को आप इज्यूम करते हो, और उसी एजम्पशंस के बेस पर आप डिफाइन करते हो किसी के मेंटल या किसी के माइंड का जो प्रोसेस है। तो दैट इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव, क्योंकि उसमें आपकी जो सब्जेक्टिव है उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि आप इस तरह सोचते हो कि इस बंदे का या इस इंसान का या इस मार्केट का इस तरह का रुझान है, तो बेसिकली ये जो माइंड प्रोसेस है तो इस तरह ये हो रहा है। समझ आ रही? तो ये सब्जेक्टिव है। तो दैट इज अगेन इसके ऊपर जो क्या कहते हैं लिमिटेशंस हैं स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द सब्जेक्टिविटी एंड इट्स नेचर। अब आगे देखते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म की एक एग्जांपल्स देखें। कौन कौन से एग्जांपल है देखें? ईटिंग अ मैंगो। ईटिंग अ मैंगो आप कहते तो क्या है? इस एनालाइज द टेस्ट, स्मेल, कलर, टेक्सचर सेपरेटली। अब हर कोई मैंगो कार है, हर एक का टेस्ट, हर एक का वो जो कलर स्मेल उसका क्या होगा? डिफरेंट होगा, वो सब्जेक्टिव है।
कि यार ये मीठा है, ये कड़वा है, ये अच्छा है, ये मजे का है, ये मजे का नहीं है, हर एक का। गोल क्या है? अंडरस्टैंडिंग हाउ complex experiences are formed। और क्रिटिसिज्म इसके ऊपर क्या है? डिफरेंट पीपल रिपोर्ट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। अब अगर एक बंदा है, इफ यू आर ईटिंग अ मैंगो, तो इफ आई लाइक अ मैंगो, सो मैं उसके बारे में रिपोर्ट क्या करूँगा कि ये वाला जो मैंगो है इस पेड़ का, ये बहुत ही बेहतरीन है, मीठा है, फलां है, फलां है, फलां है। लेकिन दूसरा बंदा है, जब वो खाएगा तो वो क्या करेगा? शायद ही मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। समझ आ रही है ना आप लोगों को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट जो थियरी है, ये जो फिलोसफी जो साइकोलॉजी को डिफाइन करता है, वो सब्जेक्टिव डिफिनीशन है, थ्रू इंट्रोस्पेक्शन है। तो इंट्रोस्पेक्शन इज ऑलवेज बेस करता है, या जो नीचे आता है किसके? सब्जेक्टिविटी के नीचे। आगे देखे प्लीज। द सेकेंड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि वो डिफाइन करता है साइकोलॉजी को, वो कौन है? हिज गुड नेम इज, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द विलियम जेम्स। देखें, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स का फोकस क्या है? द फंक्शन और द पर्पस ऑफ द बिहेवियर। द फंक्शन और द पर्पस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के फंक्शन या उसका मकसद, वो उसके ऊपर वो क्या है? फोकस करता है। फंक्शनलिज्म, कि आप किस तरह एक्ट करते हो ड्यूरिंग द सिचुएशन। तो उसके मुताबिक लोग कहते हैं कि ये इसका जो मेंटल प्रोसेस है या इसका जो बिहेवियर है, ये इससे इस तरह है। आपके एक्शंस। डू वी हैव इलियास इन दिस क्लास? सॉरी, इलियास नहीं, साहिल। साहिल ने ज्वाइन किया है कि नहीं हमारी क्लास को? इफ ही ज्वाइन द क्लास, सो आई कैन पुट हिज एग्जांपल। क्योंकि आजकल वैसे भी वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं इन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज ऑफ द हिज बिहेवियर, जो कि वो जो फंक्शन करता है, तो हर जगह पे वो नज़र आते रहते हैं। फिर आता है अगेन, इट द बिहेवियर हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट। यस, it influences education and applied psychology. Less focus on structure, more on usefulness। स्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज्यादा वो नहीं करते, बल्कि जो फंक्शन है या जो पर्पस है, जो एक माइंड का, उसके बिहेवियर का, उसके ऊपर सारा का सारा वो अपना वो बना देता है। सो फंक्शनलिस्ट, जो विलियम जेम्स की जो साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी में उसने जो थ्योरी वो एस्टेब्लिश की है, तो उसका क्या है कि ये जो साइकोलॉजी है, ये फोकस करती है ऑन द फंक्शन और द पर्पस ऑफ द बिहेवियर, और उसी के बेस पर ही वो डिफाइन करता है बिहेवियर को और माइंड को। आगे इसके हम अब एक एग्जांपल पुट करेंगे। देखिए, फंक्शनलिज्म एग्जांपल क्या है प्लीज? फियर हेल्प्स अवॉइड डेंजर एंड इंश्योर्स सर्वाइवल। फियर हेल्प्स अवॉइड डेंजर एंड इंश्योर्स सर्वाइवल। क्या है? अब ये जो है ना, फियर, डर, डर, ये एक फंक्शन है या एक प्रोसेस है या एक बिहेवियर है। ये क्या करता है? वो डेंजर को अवॉइड करता है और सर्वाइवल को क्या करता है? इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ ईरान वर्सेस ये जो यूएसए और जो इसराइल की जो लड़ाई हो रही है, आप इसमें देखें। फिर अगर होता है तो ऑलवेज आप क्या करते हो? डेंजर्स को अवॉइड करते हो। अब ईरान
कि आप एक केस स्टडी ले लें। इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आपने सरवाइव करना है, ये आप लोग थोड़ा सा इसको खुले दिमाग से सुने। अगर आपने सरवाइव करना है तो यू हैव टू make fear others, but at the same time, you should be in a fear position to see the consequences. अगर कोई और मेरे ऊपर हमला करता है या मुझे डराता है तो फिर क्या होगा। समझ आ रही ना आप लोगों को। तो उसी चीज को ना ईरान वालों ने उसको थोड़ा सा लाइट लिया। तो क्या हुआ, अटैक हुआ। जब अटैक हुआ, ठीक है, द इरानियंस दे आर doing a great retaliation in terms of to stop the belligerent nations, particularly the USA and the Israel in the region. लेकिन फिर भी ये क्यों हुआ। अगर वो फॉरेन पॉलिसी में ये वाला जो फैक्टर है थोड़ा सा वो देख लेते तो आज ये वाले हालात ना होते। वो रशिया के साथ, वो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, या अदर देन दीज कंट्रीज किसी न किसी के साथ वो कोई इस तरह का एग्रीमेंट कर लेता, जिस तरह सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो बिफोर एक जो गल्फ स्टेट्स ने जो बीट बीट वो जो अमेरिकन ने अटैक किया था ईरान के ऊपर और सेलेक्टेड अटैक्स, उस टाइम पे उन लोगों ने जो एग्रीमेंट किया था ना, तो उसी तरह को ये भी कर लेते तो आज ये वाली सिचुएशन ना हो। लेकिन वो फियरलेसली एक्शन कर रहे थे। जो फंक्शनलिज्म आप फिर बिहेवियर को देख कि क्या है, उन लोगों ने खुद ही अपने आप को जबा करने के लिए आगे किया। हंगर मोटिवेट्स ईटिंग अगेन। बिहेवियर इज पर्पसफुल एंड अडेप्टिव। और बिहेवियर जो है ये पर्पसफुल होता है किसी मकसद के लिए, और अडेप्टिव होता है किसी भी सिचुएशन में आप इसको अडाप्ट करते हो। इस तरह नहीं है कि ये परमानेंट है और बस। फंक्शनलिस्ट ये कहता है कि बिहेवियर ये अडेप्टिव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, according to your actions, according to your the role you are playing somewhere, in some market, even in your terms, तो उधर ही ये सारा कुछ हो जाता है। तो वो एडॉप्टिव होता है। आगे साइको एनालिसिस, अगेन दिस इज अनदर थियरी। और ये इसको क्यों, इसको किसने फाइंड किया हुआ है। इट हैज बीन फाउंडेड बाय द सिगमंड फ्रॉइड, one of the renowned psychoanalysis theorist। और इसका जो फोकस है वो क्या है। इट हैज बीन फोकस्ड ऑन द अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर। अनकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस करता है किस चीज का, बिहेवियर को। किस तरह, देखिए, early childhood experiences shape personality, introduce talk therapy, use dream analysis and free associations। अब ये अनकॉन्शियस, अब जो बच्चा ये जो स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। बर्थ ऑफ द चाइल्ड से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि जो चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंसेस आपने गेन की हुई होती हैं उसी के मुताबिक ही आपकी पर्सनालिटी शेप कर जाती। समटाइम्स ये हमारे अपने सोसाइटी को भी आप देखें, पश्तून सोसाइटी हो, पंजाबी हो, वट एवर द पाकिस्तानी सोसाइटी, इसमें क्या है, इसमें ये जो हस्बैंड और एक वाइफ का जो रिश्ता होता है वो किस तरह होता है, आप थोड़ा सा इसको इमेजिन कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली। तो जब ये बच्चे के सामने वो लड़ाई और झगड़े आप करते हो तो उसके जहन पे क्या चीज़ उचरी जाती है। इफ़ यू हैव अ डॉटर, तो उसके जहन पे ये जाता है कि ये जो फीमेल है ये सब्जुगेट है टू द मेल। अगर वो मेल होता है बच्चा, तो वो उसी टाइम पे कहता है कि ये देखो, इफ देयर इज अ मेल, तो वो डोमिनेट करता है फीमेल के ऊपर। तो जब ये सोसाइटी बन जाती है तो वो पेट्रियार्की बन जाती है, बिकॉज द मेल इज एवरीवेयर एंड द मेल इज ऑलवेज सब्जुगेटिंग द फीमेल। तो ये सेगमेंट फ्रीड का ये थ्योरी है साइको एनालिसिस। और वो उसी कंटेक्स में ही
ये साइकोलॉजी को डिफाइन करता है कि बेसिकली जो साइकोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू द साइको एनालिसिस, ये अनकॉन्शियस माइंड है जो कि इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, और वही बिहेवियर क्या शेप करता है? पर्सनालिटी को। समझ आ रही है ना आप लोगों को? फिर इसका हम पुट करते हैं एग्जाम्पल। देखिए प्लीज, फ्लूइड स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। अच्छा, फ्लूइड माइंड को किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं? ये कहता है कि देयर आर थ्री पोर्शंस। नंबर वन, एड। एड का क्या मतलब है? इंस्टिंक्ट्स एंड डिजायर्स, प्लेयर प्रिंसिपल्स। दूसरा, ईगो। ईगो क्या है? रियलिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग। और सुपर ईगो, ये क्या है? इट मॉरल मॉरल वैल्यूज एंड कॉन्शियस conscience. A behavior results from the conflict among these parts. और ये जो कि ये किसी भी इंसान का जो माइंड है, ये प्लीज देखिए आप लोग, ये तीन चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब ये तीन चीजें एग्जिस्ट करती है, एड भी है, ईगो भी है, सुपर ईगो भी है। और ये कहता है सिगमंड फ्रॉइड कि always there is a conflict among these three structure, these three वो क्या कहता है, डिपार्टमेंट्स इन द माइंड। और वो क्या करता है? बिहेवियर को एट द एंड, बिहेवियर ही उससे वो निकल आता है। मतलब ये नहीं है कि हर जो जेंटलमैन होता है तो वो सुपर एगो है, ये नहीं है। या बहुत ज्यादा कोई जो हरकतें करता हो छोटे बच्चों की तरह, उसमें एड ज्यादा है, ना ना ना। अगर ये जो ईगो, रियलिटी बेस्ड जो डिसीजन मेकिंग होता है, तो वो ये इस तरह है, ना ना ना। ये एक कंटिन्यूअस कन्फ्लिक्ट होता है इनके बीच में, और उसी कन्फ्लिक्ट के बेस पर ये डिसीजन या जो बिहेवियर है वो अपना रिजल्ट दे देता है कि एक इंसान का, एक ह्यूमन का किस तरह वो बिहेवियर है। साइको एनालिसिस एग्जाम्पल क्या है? फियर विदाउट नोन काज मे कम फ्रॉम द चाइल्डहुड ट्रॉमा। और ये होता है जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, तो कोई भी कॉज नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो डरा होगा, या किसी चीज से वो डरता होगा, या एकदम से आप उससे अगर कोई मजाक भी करते हो या उसके पर्सनालिटी के ऊपर कोई बात करते हो, तो वो किधर होता है? ये चाइल्डहुड ट्रॉमा, इधर से ये गुजर गया होगा। उसके साथ कोई ना कोई इस तरह की गेम हुई होगी, तो दैट इज वाई उसके दिल में, उसके पर्सनालिटी में, उसके बिहेवियर में वो डर होता रहता है। ड्रीम्स revealed hidden desires, yes. The unconscious thoughts influence actions. आगे, behaviorism. Again, this is another theory, and it has been developed by the John Watson and B.F. Skinner. इन दोनों ने इस थ्योरी को डेवलप किया हुआ है, एंड दे हैव फोकस्ड ऑन व्हाट? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओनली। ऑब्जर्वेबल, जो चीज नजर आती है उसको आप ऑब्जर्व करते हो, उसके ऊपर ही आप अपना सारा कुछ वो चलाते रहते हो। इट रिजेक्ट्स द स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस। वो कहता है कि ये जो साइकोलॉजी है, इट इज द स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस, जो हमने पहले ही स्लाइड में पढ़ा है। ये क्या है जो हमने वो उसको डिफाइन किया? कहता है कि ना 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 ना, ये मेंटल प्रोसेस की स्टडी नहीं है, बल्कि इट इज द स्टडी ऑफ द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ओनली। सही है? समझ आ रही है ना आप लोगों को? जो आप अब मुशाहिदा करते हो, आप एक लोग है, एक पर्सन है, एक ह्यूमन है, उसको एक्शंस या उसके जो हरकत और सकनात को आप ऑब्जर्व करते हो, उसके बेस पर उसके बिहेवियर को आप वो डिफाइन करते हो। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ये कौन कहता है? ये जॉन वाटसन और बी.एफ. स्किनर कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? बिहेवियर लर्न थ्रू एनवायरनमेंट।
ये क्या कहता है कि जो बिहेवियर है ये थ्रू एनवायरमेंट लर्न होता है। टेक द एग्जांपल ऑफ योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। क्या है ये? हम जिस सोसाइटी में, जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो जाते हैं, उसी एनवायरनमेंट का, उसी सोसाइटी का हमारे ऊपर क्या आ जाता है? एक असर, जो हमारे हम उसका वो पूरा का पूरा एक वो ले लेते हैं, असर। और वही इफेक्ट हमारी जो बिहेवियर है वो फिर आगे भी डिफाइन करती रहती है। सो the behavior learned through environment is also one of the key concept of the behaviorism to define the psychology. Uses the conditioning, क्या? learning through associations, और associations बिल्कुल, और हम यही चीजों में फिर वो लर्न भी करते हैं। आगे बिहेवियरिज्म कंसेप्ट थोड़ा सा इसको हमने समझना है। नंबर वन, क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग बाय एसोसिएशंस। Operant condition, learning by rewards and punishment. Reinforcement strengthens behavior. Punishment weakens the behavior. अब ये चार पांच चीजें, ये एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। एसोसिएशन के जरिए से जब आप लर्न करते हो, सोसाइटी है, एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जिस तरह बिहेवियर होता है उसके मुताबिक ही आपका जो बिहेवियर है, जैसे जैसे आप बढ़ जाते हो तो उसके मुताबिक वो शेप कर जाता है। बिल्कुल। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? किसी को आप रिवॉर्ड करते हो, किसी को पनिशमेंट करते हो, ऑन द बेस ऑफ व्हाट? ऑन द बेस ऑफ द गुड्स एंड रॉन्ग्स। कोई रॉन्ग करते हैं उसको पनिशमेंट, कोई गुड करते हैं तो उसको रिवॉर्ड। तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम इन एनी एसोसिएशन, इन एनी सोसाइटी, उसके मुताबिक ही बिहेवियर क्या, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उसके बेस पर ही वो पर्सनालिटी शेप कर जाती है। रीएनफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स बिहेवियर, यस। और फिर पनिशमेंट, हाँ ये खतरनाक चीज है। पनिशमेंट जो है ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये वीकन्स करता है बिहेवियर को। अगर आप जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, लाइक पाकिस्तान वगैरह, इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारी जो जेल सिस्टम है, जो सजा जजा का जो सिस्टम है, इसमें सबसे ज्यादा चीज को जो हवा दिया जाता है वो एक ही चीज है, और वो क्या है? पनिशमेंट। इधर हमारे यहाँ कोई थेरेपी नहीं है कि आपने किस तरह एक मुजरिम को या एक गिल्टी को वापस उसी सोसाइटी का एक सोशल और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। और इसी वजह से ही जो आपका जो क्रिमिनल है, आपका जो बैड वर्कर है, जो आपका जो रॉन्ग डूअर है, वो अगर आज छोटे लेवल पर होता है तो वो कल एक बड़े लेवल पर चला जाता है। टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, ऐसी है। नाउ अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं और भी आसान करूं, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, और जो तीसरा था, जो फास्ट बॉलर था, क्या नाम था, जो इंग्लैंड में जो गिल्टी वो हुए थे, उसमें मोहम्मद आमिर को क्या दिया? ही वॉज अंडर 18, ही वॉज 17 एट दैट टाइम। तो उसको जेल में रखा, लेकिन उस तरह की जेल में रखा जिधर उसकी सेशंस करवाए गए, उधर इसकी एजुकेशन हुई। और एजुकेशन के बाद जब जो जेल इंतज़ामिया है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या उनका जो पनिशमेंट जो सिस्टम है, उनको जब पता चल गया कि यार इसकी जो बिहेवियर है ये दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, अब ये एक जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा है या बन गया है, तो उसका सज़ा ख़त्म करके उसको जेल से निकाल दिया गया। और नाउ यू कैन सी द मोहम्मद आमिर। अब ये क्या है? उनका जो सिस्टम है, जो बिहेवियर, जो पनिशमेंट वाला जो सिस्टम है, वो बड़ा मैटर करता है
किसी भी सोसाइटी का। अब अगर पनिशमेंट 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 फॉर द सेक ऑफ पनिशमेंट है, तो ये बिहेवियर को क्या करता है, वीकन करता है, ना कि वो बिहेवियर को बेहतर करता है। आगे, what are the example या what is the example of the behaviorism? Child avoids hot stuff after pain. आप जब छोटे थे, बल्कि अभी तक आप लोग छोटे ही हो, इतने बड़े तो नहीं हुए हो, जब आप हॉट स्टोव को, चूल्हे को, गर्म चूल्हे को हाथ लगाते हो, और जब वो उसको हाथ लगाते जाते हो तो आप क्या हो जाता है, दर्द महसूस हो जाता है। जब दर्द महसूस हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम जो बच्चा होता है वो कभी भी इसी हॉट स्टोव को हाथ नहीं लगाएगा। स्टूडेंट स्टडीज मोर आफ्टर रिवार्ड। अगर मैं इस क्लास में कह दूं कि जो इलियास साहब है ये बहुत लायक है, वंडरफुल, वेरी गुड, कीप इट अप, you are the person that you have improved from your last semester in this semester, तो उधर क्या होता है, रिवॉर्ड मैंने आपको दिया, तो आप क्या करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे। बिहेवियर शेयर्ड बाय द consequences, और जो नतायज होते हैं वो बिहेवियर को क्या करता है, शेप करता है। नतायज अगर ये हो कि मैं बात बात पे आप लोगों को डांटूं, बड़ा ये जुनेद क्या बंदा है, वजीर क्या बंदा है, फलां ये, तो फिर क्या होगा, आपका जो बिहेवियर होगा ये और भी खतरनाक होगा, वो और भी नॉन कोऑपरेटिव होगा, बल्कि आप और भी गलत रास्ते को चूज करोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो फलाना है, इन लोगों ने वैसे भी, इसने मुझे वैसे भी क्लास में, इसने वैसे भी मुझे ग्रेड्स में कम नंबर ही देने हैं, तो वाई शुड आई डू वर्क हार्ड, वाई शुड आई स्टडी वर्क हार्ड। तो ये बिहेवियरिज्म जो एग्जाम्पल है ये बेहतरीन है। अगर आप लोग इसको अपने प्रिज्म से देखो तो बिहेवियरिज्म जो है वो ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर है उसके ऊपर वो डिफाइन करता है साइकोलॉजी को। नेक्स्ट, द ह्यूमनिज्म। Again, this is another theoretical framework through which the Carl Rogers and Abraham Maslow, they are defining the psychology. What is the focus of their theory? That is the free will and personal growth. Free will and personal growth, मतलब आपके ऊपर कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप बड़े आराम से, आप बड़े तहम्मुल से अपना जो फ्री विल है वो कर सकते हो, और इसी के साथ साथ आपका जो फ्री विल होता है तो आपकी पर्सनल ग्रोथ हो जाती है। इन ह्यूमनिस्ट का ये मानना है। अब फ्री विल भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्री विल बेसिकली इस इधर क्या मतलब है इन लोगों का, कार्ल रॉजर्स का और अब्राहम मैस्लो का। ह्यूमंस आर नेचुरली गुड, ये कौन कहता है, ये कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो कहता है। एट द सेम टाइम यही जो थ्योरी है ये जॉन लॉक की भी है। जब वो अपनी सोशल कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट दे देता है जॉन लॉक, तो वो भी यही बात करता है कि ह्यूमंस क्या है, ये बड़े अच्छे हैं, अदर देन थॉमस होब्स। वो कहता है कि जॉन लॉक ये बड़े अच्छे हैं, नेचुरली ह्यूमंस आर वेरी गुड। इट emphasizes on the self concept and self esteem। और ये जो एम्फेसिस करता है किस चीज के ऊपर करता है, सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर और सेल्फ इस्टीम, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर वो क्या करता है, एम्फेसिस करता है। इट इनकरेजेस द पॉजिटिव एनवायरनमेंट, और ये क्या करता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को एनकरेज करते हैं और नेगेटिविटी को अवॉइड करने की कोशिश करता है, ये ह्यूमनिस्ट कहते हैं।
आगे देखे प्लीज। मैस्लोज हायरार्की को थोड़ा सा समझना है कि मैस्लो की जो ह्यूमनिस्ट जो अप्रोच है वो कौन सी हायरार्की के ऊपर वो बेस करता है। नंबर वन साइकोलॉजिकल, फूड, वाटर एंड स्लीप, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, love, belonging, relationships, esteem, confidence, and respect, self actualization, achieving the full potential। अब ये देखे जो ह्यूमनिस्ट है बेसिकली, जो ह्यूमनिज्म है वो कहता है कि ये जो तीन चार पांच चार चीजें हैं यही चीजें हैं जो कि एक बिहेवियर को शेप करता है। नंबर पहले पे क्या है, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, सॉरी आई वाज टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी, दिस इज अ फिजियोलॉजिकल। वाटर है, फूड है एंड स्लीप है। सेफ्टी क्या है, प्रोटेक्शन है एंड सिक्योरिटी है। लव बिलोंगिंग क्या है, रिलेशनशिप्स है। एस्टीम क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अचीविंग फुल पोटेंशियल है। अब यही सारी चीजें क्या है, ये किधर फॉल करती हैं, ये फ्री विल के में वो फॉल करती है। और इधर से ही मैस्लो की जो ह्यूमनिज्म जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है टू डिफाइन द साइकोलॉजी, इधर से वो शेप होती है और इधर से वो अपना बेस बना देता है। अच्छा, व्हाट आर द एग्जांपल्स, आप लोग इसको समझ जाओगे इजीली अभी। ये देखें, teacher motivates students to reach potential. Its supportive environment improves performance. Focus on the personal development. Now, अब मुझे आप देखें, आई एम टीचिंग दिस वेरी सब्जेक्ट। अब मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। अगर मैं मोटिवेशन फॉर द सेक ऑफ क्या है, ताकि आप एक पोटेंशियल को पहुंच जाए। और वो पोटेंशियल क्या है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग and the scope and the definition of this very subject in this very semester, and particularly that was relevant to your subject as well. The supportive environment क्या होगा, वो आपकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। अब फोकस